मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बच्चे वी हैव कंप्लीटेड हाइड्रोजन, ठीक है। अपने उसके टेस्ट भी हो गया है, ठीक है। एंड नाउ आई शैल एज वी डिड विद द प्रीवियस चैप्टर्स, ठीक है ना। हुण आपां उसदे जो बैक एक्सरसाइज दे क्वेश्चंस है, ठीक है, दैट वील डू साइड बाय साइड, ठीक है ना। हुण आपां नूं एक प्रॉब्लम थोड़ी जी आएगी बच्चे दैट आई वांटेड टू डिस्कस, ठीक है ना, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट चैप्टर। बच्चे देखो ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਊ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਲੈਸਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ 10+2 ਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟ੍ਰਾਈਕਡ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਟਰਕ ਆਫ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਕੱਟਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ 올ਡ ਸਿਲੇਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹਨਾ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੇ ਵਿਲ ਇਨਕਲੂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰਡ ਅਪ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਵਰਡ ਅਪ ਹੋਣਗੇ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ NCERT ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ ਇਟ ਲਾਈਕ ਕਿ 1 to 30 ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਿਓ, ਹਨਾ। ਨਾਓ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਕੀਪ ਔਨ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਵਰ ਫਰੋਮ ਯੋਰ टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। तो तुसी वही वाले क्वेश्चंस करने हैं। आलतू फालतू क्वेश्चंस दे ऊपर ट्राई ना करियो until unless आपा आफ्टर द एंड ऑफ द सिलेबस अगर वो टॉपिक्स करने हुए, ठीक है ना। होपफुली अगर क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए तो इट विल बी बेटर, क्योंकि फिर वो थोड़ा जा ईजी हो जाता उन्हें टॉपिक्स ਨੂੰ कवर करना। बट यस कि एक बार ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ NCERT ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੈਪਟਰਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ I would like to start off with the first chapter in your book। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। The chapter is called some basic concepts of chemistry। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਦ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚੈਪਟਰਸ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ +1 +2 ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਿਟਸ ਐਂਡ ਬਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੈਪਟਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਟਸ ਐਂਡ ਬਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦ ਬੇਸਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਟਰਮਸ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। So now we shall start off with this chapter which is called some basic concepts of chemistry। and ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ and one of the most important topics in chemistry ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, that is called mole concept। so today we shall start off with mole concept। फाइन बच्चे, ठीक है। सो बिफोर वी मूव ऑन टू मोल कॉन्सेप्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ एग्जांपल ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੋਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय मोल कॉन्सेप्ट। बच्चे ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। मतलब बेसिकली एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है। बट
एक बार अगर ये समझ आ जाता है तो इट इज वेरी इजी, ठीक है ना। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ एग्जांपल ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਲਾਈਕ what we often call it कि one atom of sodium combines with one atom of chlorine, वैसे ਆਪਾਂ Cl2 ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, to form one molecule of sodium chloride। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ कि one atom of sodium plus one atom of chlorine gives you one molecule of sodium chloride, ठीक है। तो ਆਪਾਂ नीचे ਇਹਨਾਂ ਦੇ masses ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 23 grams of sodium combines with 35.5 grams of chlorine to give 58.5 grams of sodium chloride, ठीक है। सो बच्चे आप इधर नॉर्मली अपनी लैंग्वेज बोल देते हैं बट इट इज नॉट करेक्ट। जो ये 23 ग्राम्स है एक एटम का मास नहीं है बच्चे, नो डाउट आप इसको एटॉमिक मास बोल देते हैं बट वो एटॉमिक मास नहीं होता। एक एटम का मास of one atom of sodium is equal to 23 AMU। 23 AMU means atomic mass units, ठीक है ना, ना कि एक एटम का मास is 23 ग्राम्स। तुसी खुद सोचो कि 58.5 ग्राम्स सॉल्ट नमक जो आप घरे यूज करते हैं, अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 58.5 ग्राम दूंगा वो लगभग इतना होएगा, यू गेटिंग अ पॉइंट, नीयरली इतना। तो बच्चे इतना नमक तो आपको अपनी आईज नाल क्लीयरली दिखेगा है ना, बट एक मॉलिक्यूल अपन थोड़ी दिखता होता है, यानी कि दिस 58.5 grams again is not the mass of one molecule of sodium chloride। so this is basically mole concept। देखो हुन मोल कॉन्सेप्ट का मतलब की है कि बेसिकली जेड़ा 23 grams है, this is not the mass of one atom of sodium chloride, this is the mass of 1 gram atom or 1 mole of sodium। Basically this 23 grams is the mass of 1 mole of sodium atoms, या बेसिकली आप मोल नु एक एलिमेंट के केस च ग्राम एटम भी लिख देते हैं। एंड सिमिलरली दिस 35.5 grams is again the mass of 1 gram atom or 1 mole of chlorine atoms, ठीक है। And again similarly this 58.5 grams is not the mass of one molecule of NaCl, it is the mass of 1 mole of sodium chloride। फाइन, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, चलो उस पर बाद जानते हैं। सो दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। नाउ हुन व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल? ते जो 1 मोल हुंदा बच्चे दैट इज इक्वल टू 6.023 into 10 raised 23 atoms। So this 23 grams is not the mass of one atom of sodium, it is the mass of 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of sodium। And similarly 1 mole of chlorine atoms is equal to 6.02 into 10 raised 23 atoms of chlorine, ditto same उसी तरीके नाल। And similarly again this 1 mole of sodium chloride is equal to 6.02 into 10 raised 23 molecules of sodium chloride। So बच्चे ये 23 grams एने atoms का मास है सोडियम दे, ये 35.5 grams एने ही atoms का मास है क्लोरीन दे, and this 58.5 grams एने ही molecules का मास है सोडियम क्लोराइड दे। You getting a point? हुन तुसी सोच सकते हो कि अगर एने एटम्स का मास 23 grams है तो एक एटम का मास कितना होएगा 23 डिवाइड बाय एनी फिगर, सो बहुत कट हो जाएगा।
सिमिलरली अगर Na मॉलिक्यूल्स ਦਾ मास 58.5 ग्राम्स है तो 58.5 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫਿਗਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is the mass of 1 gram atom of an element and जो molecular mass ਹੁੰਦਾ है that is the mass of 1 mole of a compound ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਮੋਲ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਟਰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟਮ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟਮ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ एलिमेंट ਲਈ ग्राम एटम यूज करेंगे या 1 मोल ऑफ एटम्स एंड सिमिलरली कंपाउंड ਲਈ या तो यूज करेंगे 1 मोल या ग्राम एटम की तरह इथे यूज कर लेंगे और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ठीक है सो हुन आप इसको आगे मूव करते हैं सो हुन बेसिकली अपन इतना पता लग गया ना कि जितना भी एटॉमिक मास है वो Na एटम्स का मास है या 1 ग्राम एटम का मास है जिन्ना भी एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का वो या तो Na एटम्स का मास है या 1 ग्राम एटम का मास है और अगर वही गल आप किसी कंपाउंड की कर रहे हैं तो जिन्ना भी इसका मॉलिक्यूलर मास है वो या तो Na मॉलिक्यूल्स का मास है तो या फिर 1 मोल का मास है सो बेसिकली आप इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ सम अप करके की लिख सकते हैं देखो सो बेसिकली मैनू इन्हां फॉर्मूलास तो की पता लग रहा है सो बच्चे बेसिकली मैनू इन्हां फॉर्मूलास तो की पता लग रहा है कि 1 मोल हुणे इंपॉर्टेंट है इसको नोट कर लियो 1 mole of any compound is equal to किसी भी कंपाउंड का 1 मोल किस दे बराबर है या तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड या तो उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के बराबर है या फिर इट इज इक्वल टू 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of that compound so या तो 1 मोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ Na molecules ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਮੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ let it be I tell you कि provide me 1 mole of water ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ 1 ਮੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 16 + 2 18 ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ 18 ਗ੍ਰਾਮਸ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ Na ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ Na ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 18 ਗ੍ਰਾਮਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ठीक है सो 1 mole is equal to या तो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड तो या फिर Na molecule सिमिलरली अच्छा इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1 मोल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड सिमिलरली 1 ग्राम एटम या मोल ऑफ एन एलिमेंट सो एक एलिमेंट के केस मोल किस दे बराबर है या तो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट ठीक है या तो उसके एटॉमिक मास के बराबर है इन ग्राम्स ग्राम्स दे विच ठीक है या तो उसके एटॉमिक मास के बराबर है या फिर अगेन 6.02 वैसे एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 6.023 ਜਾਂ 6.022 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ सो 6.02 into 10 raised is 23
atoms of that element, या फिर 6.023 into 10 raised to power 23 atoms of that element. So again same, अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਮੋਲ ਜਾਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਐਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਆਇਰਨ ਦਾ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 26, ਮਾਸ ਨੰਬਰ 56, ਫਾਈਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਮੋਲ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 56 ਗ੍ਰਾਮਸ ਆਫ ਆਇਰਨ ਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਐਟਮਸ ਆਇਰਨ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, whatever you feel like ki is easier. Of course mass karna easy होएगा, है ना? So या तो मैंने 56 ग्राम 56 grams of iron तुसी weigh करके दे दो, या फिर इन्ने atoms मैंने count करके दे दो, ठीक है? So किसी भी, अच्छा एक चीज और हूं, again I repeat कि बच्चे कंपाउंड दे केस च आपां टर्म यूज करते हैं मोल, एलिमेंट दे केस च आपां यूज करते हैं ग्राम एटम, जो एक्चुअल टर्म है, बट यस ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟਮ ਨੂੰ ਮੋਲ ਆਫ ਐਟਮਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਾਓ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6.02 into 10 raised to power 23 ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ, ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ? इसको अपन डिनोट करते हैं बाय या तो Na, एवोगैड्रोस नंबर, और we can also write some books ਦੇ ਵਿੱਚ N0, ठीक है? Na या N0, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ डिनोट ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, and this is equal to 6.023 into 10 raised to power 23, ठीक है? एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू 6.02 into 10। अच्छा बच्चे ये किसी भी चीज का हो सकता है, अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि मेरे ਕੋਲ 1 मोल ऑफ एटम्स है, तो इट मींस 6.023 into 10 raised to power 23 एटम्स है किसी एलिमेंट ਦੇ। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि मेरे ਕੋਲ 1 मोल ऑफ वाटर है, तो दैट मींस 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि मेरे को 1 मोल ऑफ रुपीज है, तो मेरे को कितने रुपीज है? 6.02 into 10 raised to power 23 रुपीज। मींस की है बच्चे कि ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਮੋਲ ਹੈ that is equal to 6.02 into 10 raised to power 23, which is known as Avogadro's number। ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਡਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ 1 ਮੋਲ ਐਨੇ ਉਸਦੇ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बराबर होएगा, ते ओही 1 मोल उसके एटॉमिक मास या मोलर मास के बराबर होएगा, क्लियर? जिद्दां कि फॉर एग्जांपल सो देखो रे, now for example अगर मैं सुनू कहा कि I have 1 mole of water, मैं सुनू कहा कि मेरे को 1 मोल पानी है, तो इट मींस मेरे को या तो 18 ग्राम पानी है, so either I have 18 grams of water, तो यहां मैं सुनो ये भी कह सकता है कि I have 6.02 into 10 raised 23 molecules of water, ठीक है ना? अगर मैं सुनो कहा कि मेरे को 1 मोल पानी है, तो यहां पर मेरे को 18 ग्राम पानी है, तो यहां पे मेरे को n molecules water दे है, ठीक है? सिमिलरली if I tell you कि I have 1 mole of glucose, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H12O6, फाइन। सो हुन मैं क्या कहूंगा, इसमें टोटल करो, 12 6 72, 12 84, 66 96, 96 plus 84 180 grams। सो या तो मैं कहूंगा कि मेरे को 180 grams ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है? तो या मैं कहूंगा कि I have 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of glucose, clear?
ठीक है ना। 1 मोल ग्लूकोज का मतलब या तो मेरे को एने मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज दे ते या फिर मेरे को एना मास है उसका। सिमिलरली अगर मैं समझ कहूं कि आई हैव 1 मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन है ना, तो या तो मेरे को सिर्फ 2 ग्राम्स H2 है उसके मोलर मास के बराबर, या मेरे को 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स है किस दे H2 दे। अगेन क्लियर, यू गेटिंग अ पॉइंट। सेम इज द केस अगर अपन ने एग्जांपल्स लेनिया ने इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। एलिमेंट्स दी एग्जांपल्स मैं सुन लेके दिखाना है बिल्कुल इसी तरीके नाल। सो देखो अगर मैं सुन कहां कि आई हैव 1 ग्राम एटम ऑफ लेट इट बी कैल्शियम, द कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 मास नंबर 40, यानी कि मेरे को कैल्शियम दा कितना मास है 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, या मेरे को है 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of calcium. Clear? Easy. Similarly, एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। I have 1 mole of let's say beryllium, atomic number is 9, ठीक है। सो मैं कहूंगा कि या तो मेरे को 9 ग्राम्स बेरिलियम है, या मेरे को 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of beryllium, ठीक है। सो वह कुछ भी कह सकते हैं। सो बेसिकली अगेन इस सब का मतलब की है कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज या तो उसदे इज इक्वल टू या तो उसदे एटॉमिक या मोलर मास के बराबर, या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ स्पीशीज कितनियां होंगियां 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। एंड अगेन आई रिपीट कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, मैं सुन कहा कि मेरे को 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6.02 into 10 raised to power 23। मैं सुन कहा कि मेरे को 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स है, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स है, तो किसी भी चीज का 1 मोल है दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर? नाउ सो देखो बच्चे हुन लाइक जस्ट वैसे ही सुनो एक एग्जांपल के तौर पे दस रहे हैं। सो नो क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नो पूछा गया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है ना। यू नो कि 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 पॉइंट अब एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना से ना 1.602 into 10 raised -19 coulombs. So this is the charge of 1 electron. ਹੁਣ we know कि 1 mole ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ 6.02 into 10 raised to power 23. So 1 mole of electrons is equal to, so 1 mole of electrons is equal to charge of 1 electron fine into Avogadro's number fine. This will be approximately equal to, so ये टर्म याद रखनी है 96500 coulombs। वैसे ही होती है बच्चे 9649 समथिंग, ठीक है ना। So this is approximately equal to 96500 coulombs. So basically this 96500 coulombs की है, this is the charge of 1 mole of electrons जिस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਦਿੰਨੇ ਆ equal to 1 ਫੈਰਾਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ 1f। So basically 1 ਫੈਰਾਡੇ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬਰਾबर ਕਿੰਨਾ 96500, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੈਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ।
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन को पता है, अगर 1 मोल का फाइंड आउट करना है उन्होंने एवोगैड्रोस नंबर नाल मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल का आ गया। क्लियर? नाउ सो ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ एवोगैड्रोस नंबर नाल रिलेटेड, एक मास नाल रिलेटेड, एक वॉल्यूम नाल रिलेटेड। तो आज आप पढ़ रहे हैं सिर्फ मास ते नंबर, ठीक है ना। सो हुन अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, सो नंबर ऑफ मोल्स डिनोटेड बाय स्मॉल n, याद रखना आज तो बाद केमिस्ट्री दे विच नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल n ऑलवेज, ठीक है। हुन नंबर ऑफ मोल्स आप किवें कैलकुलेट करांगे, इसको लिखो कैपिटल N अपॉन Na, ठीक है। इसका मतलब की है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, तो N की है Na एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। ठीक है ना बच्चे। सो देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੀ ਨੋ ਕਿ 1 ਮੋਲ n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਅਨਦਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ W अपॉन m। W ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? गिवन मास। m की है मोलर मास या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। एंड वंस अगेन आई रिपीट कि अगर एटम की गल हो रही है तो इत्थे ग्राम एटम भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्लियर है? सो अगर तो अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स दिते ने उन्होंने एवोगैड्रोस नंबर नाल डिवाइड करो, अपने को नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर अपन मास दिता है किसी स्पीशी का, उन्होंने मोलर मास नाल डिवाइड करो, अपने को नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मैं तुहानू एग्जांपल्स दसदा, देखो लाइक फॉर एग्जांपल अपन क्वेश्चन आंदा है। सो देखो बच्चे, लेट इट बी कि अपन क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in, so we are being asked a question ki calculate the number of molecules, calculate the number of moles equivalent to, so calculate the number of moles equivalent to number 1 3.01 into 10 raised 24 molecules of H2। हाइड्रोजन दे 3.01 into 10 raised 24 molecules कितने मोल्स होंगे? नंबर 2 12.04 into 10 raised 20 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। थर्ड 0.9 grams of glucose। Fine बच्चे। So this is the question we are being asked। So we are being asked कि what is the number of molecules, what is the number of moles that is equal to 3.01 into 10 raised 24 molecules of hydrogen, ठीक है, या फिर 12.04 into 10 raised 20 atoms of magnesium, या फिर 0.9 grams of glucose, ठीक है बच्चे। So this is our question, ठीक है ना, which is being asked। अपन ने कैलकुलेट करना है कि जेडे ये डाटा दिता है ये किन्ने किन्ने मोल्स के बराबर है, ठीक है। नाउ सो आई सॉल्व दिस वन।
सो अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, तो इथे मेरा फार्मूला की होएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. सो गिवन नंबर इज 3.01 into 10 raises 24 upon Avogadro's number is 6.02 into 10 raises 23. Fine. So पहला मैंने नु कटिया, ऊपर आ गया 10, इनु कट के नीचे आ गया 2, ठीक है. 10 by 2 is, so I got my answer. कितना बचे? 5 moles. So I have 5 moles of hydrogen in 3.01 into 10 raises 24 molecules. Clear, I hope. Next. So again, I have been given atoms. So number of gram atoms या number of moles is equal to given moles upon Avogadro's number. Given atoms upon Avogadro's number. So this will be 12.04 into 10 raises 20 upon 6.02 into 10 raises 23. Fine. So इसनु कट के बच्चे अपने को आ गया 2. So I have 2 into 10 raises. So ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पार, नीचे 23 है, ऊपर 20 minus 23, 10 raises minus 3 moles. Clear? So this is the number of moles in Na atoms of magnesium. या आप कह सकते हैं कि Na moles is equal to Na atoms of magnesium. Fine. Now, next we come on to 0.9 grams of glucose. So ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. So mass ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? Number of moles is equal to given mass upon molar mass. So given mass is 0.9 upon glucose ਦਾ molar mass ਬਚੇ. So ਇੱਥੇ again ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਟ ਯੈਸ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 180. ਫਾਈਨ. ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 9 upon 18 into 100. So this will be 0.5 into 10 raises minus 2. So 5 into 10 raises minus 3 mole. Fine bache. So this is how we calculate the number of moles of a species. अगर अपन ਨੂੰ atoms या molecules ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Avogadro's number ਨਾਲ divide ਕਰੋ ਤਾਂ we'll get the number of moles. अगर अपन ਨੂੰ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਜਾਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ we'll get the number of moles. Clear? ਇੱਕ ਥਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ ਨਾਓ. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ. सो एक थर्ड फॉर्मूला मैं समझ दे नाल ही ऐड करवा देना है कि इन केस ऑफ गैसेस, so we are talking only about gases, no liquids, no solids. In case of gases, 1 mole of any gas, ठीक है, 1 mole of any gas occupies 22.4 liters of volume at NTP. NTP stands for normal temperature and pressure. NTP stands for normal temperature and pressure. So किसी भी गैस का 1 mole, it occupies 22.4 liters of volume at NTP, normal temperature and pressure. The normal temperature and pressure की होता बच्चे? Temperature is 0 degree
प्रेशर इज 1 एटमोस्फेयर। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ 0 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ 1 ਐਟਮੋਸਫੇयर ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਮੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦਾ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਕਿਊਪਾਈ 22.4 ਲੀਟਰਸ। ठीक है ना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाना है, ठीक है ना। सो किसी भी गैस का एक वॉल्यूम विल ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स एट एनटीपी कंडीशंस। क्लियर? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके इसको इलैबोरेट करता है। सो देखो बच्चे, अच्छा एग्जांपल स्टार्ट करने तो पहला मैं तुम्हें भी दस दवा कि 22.4 लीटर्स है, ठीक है। दिस इज सो 22.4 लीटर्स और 22,400 मिलीलीटर्स। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, उसको 1000 में मल्टीप्लाई कर दो और 22,400 cc। बच्चे cc स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है ना। सो कोई भी गैस है उसका 1 मोल हमेशा एनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करूंगा, चाहे गैस कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी होवे। देखो किवें, चाहे तुसी 1 मोल लवो CO2 दा, ठीक है, चाहे तुसी 1 मोल लवो H2 दा, ठीक है। दोनों दे 1 मोल दे विच हमेशा एटम्स कितने होंगे या मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। हाइड्रोजन दे विच हाइड्रोजन दे मॉलिक्यूल्स इतने होंगे, CO2 दे 1 मोल दे विच CO2 दे इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। दोनों दी वॉल्यूम हमेशा कितनी होगी 22.4 लीटर्स। तुसी ये भी कह सकते हो अगर एन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन दे लोगे उन्हां दी भी इतनी वॉल्यूम होगी, अगर एन मॉलिक्यूल CO2 दे लोगे तो उहदी भी इतनी वॉल्यूम होगी। पर इसदे 1 मोल दा मास कितना होएगा 12 + 32 44 ग्राम्स। हाइड्रोजन दे 1 मोल दा मास कितना होएगा ओनली 2 ग्राम्स। सो मास उन्हां दे मोलर या एटॉमिक मास दे बराबर है, बट नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम वो फिक्स है। ते याद रखना है बच्चे, जेड़ा वॉल्यूम का फॉर्मूला है इट इज यूज्ड ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ गैसेस, नॉट इन केस ऑफ सॉलिड्स या लिक्विड्स। सो ऐसे एक फॉर्मूला आपां हुण नंबर ऑफ मोल्स ਲਈ क्रिएट करांगे वॉल्यूम तो, ठीक है। सो ऐसे ही आपां एक फॉर्मूला बच्चे क्रिएट करांगे नंबर ऑफ मोल्स दा वॉल्यूम तो। सो अगर मैं कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस n is equal to V upon 22.4। समझ गए ना, 1 मोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਿਊਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 22.4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲਸ ਆ ਗਏ। V ਕੀ ਹੈ given volume in liters ਤੇ 22.4 ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਿਲੀਲੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, गिवन वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स दी है, फिर आप उसको डिवाइड कर देंगे 22,400 दे नाल मिलीलीटर या सीसी दे विच। क्लियर बच्चे, ठीक है। एंड अगेन वंस अगेन आई रिपीट कि ये फार्मूला आप सिर्फ गैसेस लिए यूज करना है, लिक्विड या सॉलिड लिए नहीं बच्चे। देखो अगर लिक्विड या सॉलिड होगा, चलो सपोज सुनो आ गया, देखो सपोज सुनो आया, मैं सुनो गिवन कीता है calculate the number of moles in, ठीक है, calculate the number of moles in 18 grams of, एक तो मैं समझ लेता है लिक्विड वाटर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देता है मैं सुनू 18 ml लगाओ, 18 ml ऑफ लिक्विड वाटर। दूसरा मिलता सुनो 18 ml ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है।
मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं? सो हुण मैं तुहानूं कहा कि मोल्स कैलकुलेट करके दिखाओ मैनू 18 ml लिक्विड वाटर दे ते 18 ml वाटर वेपर्स दे, ठीक है। हुण जिहड़ा ये वाला फार्मूला है किस ते लगूगा? सिर्फ वेपर्स दे, क्योंकि वेपर्स इज अ गैस। बच्चे गल समझ आई कि नहीं? ये वाला जिहड़ा फार्मूला है ये सिर्फ इत्थे लगूगा, क्योंकि सॉरी ये वाला जिहड़ा फार्मूला सिर्फ सेकंड पार्ट ते लगूगा, क्योंकि लिक्विड के ऊपर ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है। सो हम देखो, अगर तो मैं सेकंड सॉल्व करना है, इट्स वेरी इजी। सो सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ गैसेस गिवन वॉल्यूम अपॉन 22,400, क्योंकि ml है। सो आई डिवाइड 18 ml अपॉन 22,400 ml। जितना भी आंसर आ गया वो मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेपर्स है। हुण मैं अगर उसे 18 ml लिक्विड वाटर दे विच नंबर ऑफ मोल्स कढने हैं। सो फर्स्ट पार्ट, तो हुण बच्चे देखो वॉल्यूम का तो मेरे को डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, गैस दे केस तो मेरे को डायरेक्ट रिलेशन सीगा वॉल्यूम दे नाल, इत्थे है नहीं। इत्थे मेरे को ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ਦਾ ਜਾਂ मास ਦਾ। मैं वॉल्यूम तो मास ਕੱਢ ਸਕਦਾ अगर मेरे को डेंसिटी होवे, ਤੇ वाटर ਦੀ डेंसिटी कितनी ਹੁੰਦੀ है? 1 ग्राम पर ml। सो डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। क्लियर? सो हुण मैं पहला मास कढूंगा वाटर का, ठीक है। सो डेंसिटी is equal to mass by volume। This implies, ठीक है, 1 is equal to mass upon 18। So this implies mass is equal to, so 18 ml पानी कितने के बराबर है? 18 ग्राम के, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो जितनी वॉल्यूम है उतना ही मास आएगा, है ना। हुण मैं कर सकता है, so number of moles is equal to given mass upon molar mass। कितना मास दिता हुआ है मैनू? 18 ग्राम्स। वाटर का मोलर मास कितना होता है? H2O का 18। सो कितने मोल्स के बराबर हो गया? 1 मोल। क्लियर? सो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। सो देखो बच्चे कितना फर्क पै गया। अगर वही 1 मोल सॉरी 18 ml लिक्विड वाटर है तो 1 मोल हो गया, ठीक है। अगर वही 18 ml वाटर वेपर्स है तो 18 by 22,400 बहुत कट आएगा 1 तो, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, ठीक है। सो वंस अगेन आई रिपीट ऑन द बोर्ड जो अपन आज 3 फॉर्मूलाज कीते हैं, ठीक है। कल आप इन्हां नाल रिलेटेड क्वेश्चंस करने होंगे बच्चे। सो देखो, सो वी हैव डन 1 mole of any substance is equal to molar mass या atomic mass of that substance in grams, that is also equal to Avogadro's number of molecules या atoms of that substance, and it is also equal to 22.4 liters of वॉल्यूम अगर वो एक गैस है बच्चे, अगर वो एक गैस है, ठीक है। सिमिलरली हुन फिर अपन इन्हां दे बेस ते फार्मूलाज बना ले। किसी का भी अगर तुसी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, अगर अपन वॉल्यूम दिती है तो उसको 22.4 लीटर्स नाल डिवाइड कर दो। अगर ml दिती है तो 22,400 नाल डिवाइड कर दो। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि 1 ml ते 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि cc की हुंदा है बराबर, ठीक है। अगर अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिते है तो उसको एवोगैड्रोस नंबर यानी कि 6.02 into 10⁻23 नाल डिवाइड कर दो। और अगर अपन मास गिवन है तो उसको आप मोलर या एटॉमिक मास के नाल डिवाइड कर दो, ठीक है बच्चे। सो ये 3 फार्मूलाज आपने कीते हैं, कुछ ज्यादा काम नहीं कीता, सिर्फ अपने बेसिक मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कीता है, ठीक है। कल आप इसके क्वेश्चंस सॉल्व करांगे,
ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सॉल्व करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस ਤੁਸੀਂ खुद सॉल्व करने होंगे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट बच्चे इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है ना। जिन्ना इसਨੂੰ इंटरेस्ट ਨਾਲ सॉल्व करोगे द मोर यू सॉल्व इट द परफेक्ट यू आर, ठीक है। एंड एक चीज याद रखनी है कि मोल कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड थ्रू आउट द केमिस्ट्री। देखो ਆਪਾਂ जिन्ने भी चैप्टर्स ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ एटॉमिक स्ट्रक्चर है, किते ना किते मोल वर्ड ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ठीक है ना। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈप्टर ਟੌਪਿਕ ਐਟਲੀਸਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ठीक है ना। वैसे भी ਆਪਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ 9th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਚੇਂजेस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ, ठीक है ना। आई थिंक बस ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 9th ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਰਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ 22.4 liters of any gas is at NTP, normal temperature and pressure conditions. Temperature is 0 degree centigrade and volume pressure is 1 atmosphere. Clear? So normal temperature and pressure conditions. किसी भी गैस ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ 0 डिग्री and 1 atmospheric pressure ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 22.4 ਲੀਟਰਸ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਥਰੋ ਵਿਦ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾਸ, ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। सो अगेन मैं सब दस दवा कि कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट दे मैं सब खुद करावांगा ऑन द बोर्ड, कुछ क्वेश्चंस तुसी खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। एंड जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट होंगे, ठीक है बच्चे। सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। मैं एक बार सब दस दवा कि नाउअडेज यू शुड टेक ऑप्टिमम केयर बच्चे, क्योंकि आजकल थोड़ा जा अपनी सिटी दे विच भी मतलब जो कोरोना वायरस के केसेस है दे आर इंक्रीजिंग, ठीक है ना। सो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि किते इधर उधर फ्रेंड्स दे घर या किते भी मतलब घूमन फिरन ना जाओ। सिट एट योर होम, स्टे एट योर होम, गिव मैक्सिमम टाइम टू योर फैमिली, टू योर पेरेंट्स, ठीक है, एंड टू योर स्टडीज जिन्हों कहते हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स के नाल रहो, ग्रैंड पेरेंट्स के नाल रहो, बुक्स के नाल रहो, ठीक है ना। टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस टाइम, ठीक है। एंड बच्चे बाहर इधर उधर जान तो खास तौर पे रेस्टोरेंट्स, ठीक है ना, या कोई स्ट्रीट फूड्स इन्हां तो गुरेज करो, ठीक है। कुछ दिन अगर फ्रेंड्स को नहीं मिलोगे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी, ठीक है ना। यू कैन टॉक ओवर द फोन, ठीक है, एंड डिस्कस अगर तुसी कुछ भी गल्लां करनियां अपनियां, ठीक है ना। बट स्टे एट योर होम बच्चे, स्टे फिट एंड फाइन, ठीक है ना। हेल्थ इज वेल्थ जिन्हों कहते हैं, ठीक है। सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे absolutely fit and fine. Thanks a lot.